Hello, Assalamu alaikum, and very good morning to all of you. You are watching my channel, Shahid Sir's Physics class. So today our topic is two refractions through a glass slab. थोड़ा बहुत हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी आपको ये डिस्क्राइब किया है, तो चलते हैं आज इसके लिए हमें डेरिवेशन भी निकालनी है। देखते हैं वो डेरिवेशन क्या है। वो कल ही थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन मैंने उस प्रीवियस लेक्चर में आपको दिया था। अगर वो लेक्चर आपको मिस हुआ है तो आप प्लीज़ उस लेक्चर को देख सकते हैं। यू कैन चेक माई प्लेलिस्ट। थैंक यू। सो टुडे वेरी इंपॉर्टेंट चांसेस आर देयर ये एग्जाम में आ सकता है बेटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल, यू कैन इजीली डू इट। तो क्वेश्चन, व्हाट इज क्वेश्चन? फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट in a glass slab is actually it's a rectangular glass slab, तो rectangular glass slab में हमें देखना है कि कितने रिफ्रैक्शंस होते हैं बेटा। there occurs two refractions अभी आपको पता चलेगा। देखो सिंपल, I'm going to make it simple। तो glass slab I will show it like this is glass slab PQRS। okay, so simple, it is PQ। now you can here see the first interface of this glass slab is PQ, the first refraction takes place at PQ, already told, you can check my previous lecture। now glass slab mein rectangular glass slab, so it has two interfaces। now you can see PQRS, so two refractions occur। so यही मैं टाइटल ऑफ द क्वेश्चन क्या है, two refractions through a glass slab। very good। so what you have to do, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, let us consider a glass slab PQRS in which there are two surfaces, two interfaces, one is the PQ, another is RS। now this is the point that I'm going to tell you is very important। ये वाला portion है, this is the air, okay, this is air, it is a medium first, and what is the medium second? exactly, it is glass, so I will write it like G, it is G। okay, now first point that you have to remember, only then you can explain what the expression you are getting, you can explain that। I already told you that air has its own refractive index। let us suppose I denote it by Na। what is Na here? sir, it is the refractive index of air, and here I will write Ng। what is the refractive index of glass? it is denoted by Ng। this is clear to you। again देखो, पहले लाइट एयर से आएगी, फिर वो गिलास में चली जाएगी, फिर गिलास से बाहर जाएगी, तो एयर टू गिलास एंड देन गिलास टू एयर। वेरी गुड। तो अगेन आई एम राइटिंग हियर Na। it is again what? refractive index of the air। very simple। तो कल का डायग्राम अगर हम आप देखेंगे, suppose AO, very good, this is A and this is O। O is the point where the ray strikes, so this is incident ray। very good, this is incident ray। and चूंकि आपको पता ही है कि रेयर मीडियम से जब लाइट आती है और कहां जाएगी, डेंसर मीडियम में, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। या ऑलरेडी हमने पढ़ा है, तो इट विल शो लाइक दिस। very good, so you can draw the normal। yes, okay, so what angle? as you already know, it is sine of incidence, and this is here sine of refraction। अब देखिए ना, ग्लास में ये हाँ, यहाँ पे मैंने AO लिखा, तो let us suppose I will write it OB। अब ग्लास में OB is the incident ray, अब आ रही है डेंसर मीडियम से, अब ये कहां जाएगी, रियरर मीडियम में। तो मैंने ऑलरेडी आपको कहा है डेंसर से रियरर तक, तो इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहां पे भी आप नॉर्मल ड्रा कर सकते हो लाइक दिस। तो दिस इज हियर, हाँ यहां पे आई विल राइट R1। तो इस वाले एंगल को मैं लिखूंगा sin R2, एंड दिस नॉर्मल विद द इमर्जेंट रे आई विल राइट sin E। नाउ सी माय डियर, AO is the incident ray, it makes an angle with the normal sin I, clear? Then OB is the refracted ray, it makes an angle sin R2 with the normal, clear? Now inside the glass, if you see, OB is the incident ray, but inside the glass, no doubt यहां पे मैंने refracted ray कहा, लेकिन कब? जब light air to glass
एयर से जो लाइट आती है दैट इज इंसिडेंट रे एंड देन इट इज रिफ्रैक्टेड रे. बट माय डियर व्हेन वी टॉक अबाउट द डेंसर टू रेयरर मीडियम, अब डेंसर मीडियम में OB इज द इंसिडेंट रे एंड AOB एंड यहां पे हम लिखेंगे C. BC इज द इमर्जेंट रे. BC इज द इमर्जेंट रे. नाउ यू कैन सी हियर sin R1 is the angle of refraction with the normal. Now what is sin R2 here? It is the angle of incidence inside the glass, and sin of E, it is outside the glass, that is it makes an angle with the emergent ray, that is sin E. Okay, this much is clear to you. Now my dear, you can easily apply Snell's law. पहले हम refraction, यहाँ पे we will write here refraction at PQ. So nice, PQ. Okay, just try to understand. It is going to be very simple. And the product of refractive index and the sin I will write here. NA sin of I is equal to NG sin R1. Yes. क्या मैं लिखूंगा बेटा? NG sin R1. अगर हम Snell's law भी अप्लाई करेंगे तो आई विल राइट हियर sin I डिवाइड बाय sin R1 will be equal to Ng by Na. This is Snell's law. So let us take it equation number 1. It's equation number 1. Very important. You have to understand. देखो Snell's law को हम दो तरीकों से भी एक्सप्लेन करते हैं. The product of refractive index and the angle of incidence is equal to the product of angle of refraction and the refractive index of another medium 2. तो जब हम इनको ऐसे मतलब इक्वेशन के sin I by sin R1 it will be equal to Ng by sin. मैंने क्या किया, sin I को यहाँ रखा, इस वाले को यहाँ पे लाया, Ng वहीं पे रखा, तो Na को यहाँ पे रखा, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिखा. I hope it is very clear to you. So let us have this equation number 2. So what is this? It is the refraction at PQ. Same thing आप apply करेंगे किस पे? Very good. So I will write over here refraction at shabash RS. Good. Refraction at RS. Again you can apply now. Ng sin R2. Oh, very good. Ng sin of R2 will be equal to shabash bolo beta Na into sin I. Very good. Na into sin of E. Sin of E. What is sin of E? It is the angle of emergence. जिस तरह मैंने यहां पे लिखा बिल्कुल ऐसे लिखेंगे. sin R2 को हम ऐसे लिखेंगे sin R2 डिवाइड बाय sin of E will be equal to Na divide by Ng. Is this clear? बिल्कुल जिस तरह मैंने यहां पे लिखा बिल्कुल ऐसे ही मैंने इस इक्वेशन को यहां पे लिखा, लेकिन इसको थोड़ा बहुत चेंज करेंगे. यहां पे Ng और Na ये इसको भी ऐसी इक्वेशन लिखेंगे. अगर हम इसको रिवर्स करेंगे, रिवर्स दिस इक्वेशन, तो क्या बनेगा बेटा? यहां पे मैं इसको ला रहा हूं, यहां पे शाबाश ध्यान देना है. तो इसको पूरा रिवर्स करो, साइन ई ऊपर आ जाएगा, साइन ऑफ ई डिवाइड बाय शाबाश साइन ऑफ R2, it will be equal to Ng by Na. Very good. So now you can take this equation number 2. Equation number 2. I hope it is clear. It is very simple. मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने अप्लाई Snell's लॉ को यहां पे किया. ओके माय डियर, Snell's लॉ मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में आपको अच्छे से पढ़ाया है, तो इसलिए हम यहां पे भी इस वाले सरफेस पे भी हम Snell's लॉ अप्लाई करते हैं, इस वाले पे भी Snell's लॉ अप्लाई करते हैं. अब आप कंपेयर करो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को. Ng by Na, यहां पे भी Ng by Na, so this and this will cut. बचा क्या? देखिए बेटा यहां पे शाबाश. अब क्या है? साइन I divide by sin R1 now will be equal to sin E by sin R2. Sin E by sin R2. Very good.
नाउ हियर प्लीज सी टुवर्ड्स द डायग्राम। फिगर को देखो, जो साइन R1 है यहां पे, साइन R1 will be equal to sin R2 why? Alternate angles, very good, alternate। तो sin R1 is also sin R2 के बदले भी sin R1, तो ये दो एंगल्स तो क्या सेम है, तो इसलिए दिस एंड दिस विल कट, तो क्या निकला बेटा, sin ऑफ I विल बी इक्वल टू sin ऑफ E। यही हमने डिराइव करना था। तो याद रखना है बेटा, इन ए रेक्टेंगल ये वाला एंगल जो है ये किसके बराबर आना चाहिए, इस वाले एंगल के बराबर। तो याद करो, इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसको प्रोड्यूस किया था, तो ये भी क्या आ गई थी, पैरेलल। सो दिस इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे व्हेन प्रोड्यूस्ड, एंड देयर वाज डिस्टेंस दैट वाज डिनोटेड बाय x, जिसका नाम मैंने बोला था लेटरल शिफ्ट। तो यहां पे हमें प्रूव करना था sin I विल बी इक्वल टू sin ऑफ E। तो लो जी, हमने इसको डिराइव किया। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डिराइव sin I इज इक्वल टू sin E इन केस ऑफ व्हाट, गिलास स्लैब। आई होप इट इज क्लियर टू यू। दिस इज वेरी सिंपल। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता, कमेंट में जरूर लिखना है। तो अगर मुझे टाइम मिला तो दूसरा वीडियो इसके रिलेटेड हम करेंगे, या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी इसी बेस्ड पे अगर होंगे तो उसको भी हम इंशाल्लाह करेंगे। उससे क्या होगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो लेट अस रिकैप्चुलेट व्हाट वी हैव रेड सो फार। लेट अस रिकैप्चुलेट दैट। देखो, मैंने कहा कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द टू रिफ्रैक्शंस थ्रू अ ग्लास स्लैब। हमने क्या किया, PQRS एक ग्लास स्लैब में लिया, इसके दो सरफेसेस मैंने आपको ऑलरेडी कहा है, देयर आर टू इंटरफेसेस, वन इज PQ अनदर इज RS। तो हाउ मेनी रिफ्रैक्शंस डू ऑकर, एग्जैक्टली 2 एट PQ, दिस इज द फर्स्ट, देन एट RS एट सेकंड। PQ पे हमने क्या किया, देखो, NA sin I इज इक्वल टू NG R1। तो इसको एक्सप्रेशन में चेंज किया, तो sin I डिवाइड बाई sin R1 दैट विल बी इक्वल टू NG बाई NA। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इसी तरह रिफ्रैक्शन एट RS भी लिखेंगे, इस वाले को लिखेंगे NG sin R2, यहां मैंने लिखा NG sin R2 इज इक्वल टू NA sin E, तो NA sin E। इसको भी ऐसे लिखेंगे, तो यू गेट द एक्सप्रेशन sin R2 बाई sin E इज इक्वल टू NA बाई NG। इसको जब हमने रिवर्स किया तो क्या बना, sin E बाई sin R। ये रिवर्स क्यों करते हैं, ताकि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड बराबर आए। तो फिर हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को। NG बाई NA वो कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन क्या आता है, sin I डिवाइड बाई sin R1 इज इक्वल टू sin E बाई sin R2। तो फिर मैंने आपको क्या कहा कि फिगर में आप देखो sin R1 किसके बराबर है, sin R2। आप लोग ये सर क्यों, बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। तो व्हेन दे आर अल्टरनेट एंगल्स, sin R1 इज इक्वल टू sin R2, तो ये दो कैंसिल हो जाएगा, तो sin I विल बी इक्वल टू sin E। तो यही डिराइवेशन हमने करनी थी कि आपको प्रूव करना है कि ये वाला एंगल ये sin I ये किसके बराबर निकलना चाहिए, sin E। वाई, बिकॉज दीज टू आर पैरेलल, these two are parallel। तो ये हमने प्रूव किया। So this was all about what, to refractions through a glass slab। I hope you have clearly understood this। If you really like my video, please do share and subscribe to my channel, and especially do comment। Thank you, may Allah bless you, and keep always learning। Thank you, may Allah bless you।